Life. Okay. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I warmly welcome you all on behalf of Law Students Council Pakistan. I am Hafsa Adil, serving as Secretary Media for the Law Students Council. Continuing the legacy of LSC, we proudly present our first webinar of LSC Summer Webinar Series 2024. LSC has constantly played a vital role in fostering the growth and development of the students. Our webinar series aim to provide a virtual platform for experts, practitioners, and professionals to come together to share their knowledge and value. The significance of the series is to create awareness and foster understanding on crucial topics. So today's webinar will focus on addressing the gender-based violence in Pakistan within the legal framework. Before I formally begin this session, I would like to express my gratitude to our distinguished speaker, Advocate Sharafat Ali Chaudhry, for taking his time to share his expertise with us. Ladies and gentlemen, I am honored to introduce our esteemed speaker for today's webinar. Mr. Chaudhry is a renowned legal expert, human rights advocate, and a human rights advocate who has significantly contributed to shaping legislation and policy in Pakistan, particularly concerning the child, and women's right. Uh, s- his work includes the key legislation such as Juvenile Justice System Act 2018, Hindu Marriage Act 2017, and Alternative Dispute Resolution Act 2017. The criminal law amendments related to rape and honor killing in 2016, among others. Mr. Chaudhry is founding chairperson of the School for Law and Development and legal consultant for the UN's Food and Agriculture Organization. He is also a founding partner of Hassan and Sharafat Advocates. His extensive experience and dedication to human rights make him the perfect speaker to address this crucial topic. Sir, we are extremely honored to have you today with us, and it's our absolute privilege to learn from you. Sir, is there anything before starting this session? Is there anything you would like to add or share with us? I think you already said a lot about me, so let's come to the topic. Thank you very much for introducing me. Okay, sir. Ladies and gentlemen, without any further delay, let us start the formal discussion. Sir, I will start with my questions first and then we'll move to the chat box to refer participants' question. So sir, to lay down the foundation, आप kindly ये थोड़ा सा explain कर सकते हैं that what is gender-based violence and how does the Pakistani legal system define gender-based violence? जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और लॉ के अंदर आपको शायद उस तरीके से डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन ना मिले, लेकिन ये कि लॉ जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुराद तो ये है कि किसी भी जो है वो सिनफी बुनियाद के ऊपर कोई भी जो है वो किसी भी किस्म का जो तशद्दुद है, आपको इस बुनियाद के ऊपर आप किसी तशद्दुद का शिकार हों कि आप खातून हैं, आप इस बुनियाद के ऊपर तशद्दुद का शिकार हों कि आप ट्रांसजेंडर हैं, यानी कि जो आपकी जिन्स है उसकी इवन ये कि वो इसका शिकार कोई मेल भी हो सकता है कि उसको सिर्फ़ इसलिए जो है वो तशद्दुद किया जाए कि वो चूँकि उसका ताल्लुक जो है वो एक मेल मेल है, एक मेल फैमिली से उसका ताल्लुक है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस तो मतलब ये है कि इट डज़न्ट आम तौर पे इसको लिमिट औरतों के साथ किया जाता है। तो ये है कि ये औरतों की हद तक लिमिट्स नहीं है, इसका शिकार कोई भी शख्स हो सकता है। सिर्फ़ देखना ये है कि उसको उसकी सिन्फ़ की वजह से जो है ना कि उसको उस वायलेंस का शिकार होना पड़ा। अब जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर लॉ के अंदर इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस की डिफरेंट शेप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप देखते हैं सेक्सुअल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा वायलेंस जो है वो आपके कोई स्पेशल पर्सन्स हैं तो जो स्पेशली या डिसेबल्ड पर्सन जो है वो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स भी उनको कहते हैं। उनके अगर
सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप वो एक खास क्लास से ताल्लुक रखता है या उसका किसी खास कौम से ताल्लुक है, तो ऐसी सूरत में उसकी जो वायलेंस की जो कैटेगरीज हैं वो बहुत, आप कह लें कि उसकी वैरायटी हो सकती है। तो अगर आप लॉ में देखेंगे तो वो हर जो वायलेंस की कैटेगरी है वो अलग से डिफाइंड है और उसके लिए अलग से ही लीगल प्रोविजंस हैं जो उसको कैटर करती हैं और उसी तरीके से उसको फिर आप कह लें कि जो परपेट्रेटर हैं उनको सजाएं देने का तरीक़ेकार भी अलग है। तकरीबन सारे ही सूबों के अंदर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज़ जो है वो मौजूद हैं। इसी तरीके से जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसको आपका पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो कवर करता है और कुछ जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉज़ जो हैं उनमें जो केपी का लॉ है उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ को कवर करती हैं। तो ये है कि ये डिपेंड करता है, जो चाइल्ड मैरिज है दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब इसी तरीके से अगर आपका किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक है, माइनॉरिटी से ताल्लुक है, तो ऐसी सूरत में मतलब ये है कि आपको आपकी सिन्फ की बुनियाद के ऊपर जिस भी किस्म की आप कह लें कि वो तकलीफ का सामना करना पड़े, तो वो दैट वुड फॉल अंडर द डेफिनिशन ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस और फिर जिस तरह का वायलेंस होगा, उसी से रिलेटेड उसकी डेफिनिशन और उसका लॉ होगा। तो ये आपको मुख्तलिफ लॉज़ को देखना पड़ेगा उस लॉ की कैटेगरी के एतबार से। ओके सर, आई गेस दैट वाज रियली इंसाइटफुल और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है वो चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। सर, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस जो एक वायलेंस के विक्टिम को फेस करने पड़ते हैं व्हेन दे ट्राई टू सीक द जस्टिस अंडर आवर करंट लॉज इन पाकिस्तान? देखिए, जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है, चैलेंज तो आप कह लें कि हमारा जस्टिस सिस्टम चूँकि उस तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो विक्टिम सपोर्टिव नहीं है, उसके अंदर आपको जगह-जगह के ऊपर हर्डल्स नज़र आती हैं। तो ये है कि और एडवर्सरियल है, यानी कि विक्टिम को ही साबित करना है कि मेरे साथ ये ज़ुल्म हुआ है, एक्यूज़्ड जो है दैट्स अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तो ये एक तो ये कि आप चाहे जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार है या ये कि आप किसी भी तरीके से जब आप विक्टिम हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुश्किल में हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो चैलेंज जो किसी भी आम शख्स को फेस करना पड़ता है अगर उसने जस्टिस सीक करना है, वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के शिकार को भी जो है उसका सामना है। लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो उसको करना पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकेंडरी विक्टिमाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है, कि यानी कि जस्टिस सीक करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो आपके साथ ज़ुल्म ज़्यादती हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि एक खातून वो पुलिस स्टेशन गई है, अब पुलिस स्टेशन का जो माहौल है, वहाँ पे उसके साथ जो रवैया रखा जाता है। अच्छा, इसी तरीके से ट्रायल प्रोसीजर के दौरान जो आपसे उसमें जो विक्टिम है उससे जिस तरीके से जो डिफेंस काउंसल होगा वो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो प्रोसेस जो है वो बहुत ही तकलीफदेह होता है। फिर जो सबसे आखिरी जो बड़ा आप कह लें कि एक जो चैलेंज है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन है, कि हमारे यहाँ ये कि एक्यूज़्ड को ही देखा जाता है उसके कि वो उसने कुछ गलत किया है या नहीं किया। लेकिन जो विक्टिम है उसकी रिहैबिलिटेशन कैसे होगी, वो सोसाइटी में कैसे दोबारा रीइंटीग्रेट करेगा, उसके अंदर कैसे हौसला आएगा कि वो लोगों को फेस करे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगरचे जो रिसेंट कुछ लॉज़ हैं, जैसे एंटी रेप एक्ट है, उसके जो रूल्स हैं वो आपको प्रोसीजर बताते हैं इन्वेस्टिगेशन का भी, प्रोसेस का भी, जेंडर सेंसिटिव प्रोसिक्यूशन कैसे होनी चाहिए। बट स्टिल अगर उसको आप ऑन ग्राउंड देखें, प्रैक्टिस में देखें, तो अभी तक उसके ऊपर लोगों को इल्म नहीं है कि ये लॉज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, ये रूल्स एग्ज़िस्ट करते हैं और अगर पता भी होगा तो उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं है और अगर ये भी हो तो फिर उसको इन्फोर्स करने के लिए जो रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स स्टिल नीडेड। तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, आप कह लें कि ऑपरेशनल सतह के ऊपर भी। तो एक तो आप ये कि ओवरऑल आपका जस्टिस सिस्टम इन इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है और दूसरा ये है कि फिर आपका जो रिहैबिलिटेशन सोसाइटी की तरफ से और फिर जो रिहैबिल सोसाइटी का रवैया और रिहैबिलिटेशन का जो इश्यू है, वो एक आप कह लें कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा किसी भी विक्टिम के लिए। ओके सर, सर आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई रीसेंट लीगल रिफॉर्म्स आए हैं जो इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो, इसका रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर रहे हो? अच्छा देखें, जहाँ तक लीगल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान ने इस
पर्सपेक्टिव से बहुत सारी लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट की है। और ये अगर आप पिछले 10-12 सालों के अंदर देखें तो मतलब आई कैन नेम अ सीरीज ऑफ लॉज जो इसमें आए पीपीसी के अंदर। एटलीस्ट आपने इवन मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ लॉज का जिक्र किया। वो मैं खुद एंटी रेप कमेटी जो है स्पेशल कमेटी उसका मेंबर हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाई की हुई है। और उसका काम है गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस करना। दिस इज अ वेरी यूनिक जो है वो आप कह लें कि स्टेप के जो फेडरल गवर्नमेंट ने वॉलंटियर्स जो जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को वॉलंटियर किया है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि किस तरीके से जो है ना कि वो जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज जो है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो ये है कि रिफॉर्म्स तो आपको लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स तो आपको बहुत सारी नजर आती हैं। आपने 2016 के अंदर जो है ना कि वो 3 अमेंडमेंट थी पीपीसी के अंदर। एक जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को देखती है, दूसरी आपकी जो है वो स्पेसिफिकली जो ऑनर किलिंग है, तीसरी अमेंडमेंट जो है वो रेप रिलेटेड ऑफेंसेस जो सेक्सुअल अब्यूज है उनको देखती है। फिर 21 का जो एक्ट है एंटी रेप एक्ट 21 और उसके फिर रूल्स भी अब नोटिफाई हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस में तकरीबन सारे ही सूबों के अंदर इस वक्त जो है ना वो लेजिस्लेशन हो चुकी है। अच्छा, चाइल्ड मैरिज एक बड़ा इशू है जिसको जेंडर बेस्ड वायलेंस की एक कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो उसके ऊपर तकरीबन सारे सूबों में तहरीक चल रही है, जिसमें बिल्स किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जो है वो इस वक्त मौजूद है, अगरचे वो पुराना लॉ ही एग्जिस्ट करता है अभी तक। मतलब सिंध का 2013 का था और रेस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है वो 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, लेकिन बिल्स बहरहाल मौजूद है, अंडर डिस्कशन है। तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी जो रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना ऑन ग्राउंड, उनको पूरे तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, और जो रेलेवेंट जस्टिस एक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग उन इश्यूज के ऊपर होना, दैट्स डेफिनेटली मच मोर रिक्वायर्ड। ओके सर। सर आप थोड़ा सा इसका बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का या जो एनजीओज़ के हमारे इदारे हैं या यूएन जो है वो इसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है ताकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में भी आएँ पाकिस्तान में? देखें, जो सिविल सोसाइटी, ये दो मुख्तलिफ तरह के इदारे हैं। जो यूएन है, यूएन के यूएन एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, वो बाय देयर मैंडेट उनका काम है गवर्नमेंट की कैपेसिटी को बिल्ड करना। और वो कैपेसिटी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से है बाय प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सपोर्ट। और अब ये वो यकीनन टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये है कि आप उसकी अच्छी लेजिस्लेशन में सपोर्ट करें, आप जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी ट्रेनिंग के अंदर जो है वो सपोर्ट करें। इसी तरीके से अब ये उनका मैंडेट है कि गवर्नमेंट के साथ जो है वो जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो रेलेवेंट हमारे आज के टॉपिक से जो रेलेवेंट लॉ है वो सीडो है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द elimination of all form of discrimination against women, convention on the rights of the child relevant है, convention on the rights of person with disability relevant है। तो ये सारे कन्वेंशन इनको इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट की को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, ये यूएन एजेंसीज का मैंडेट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरीके से जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जाहिर है कि आम लोगों तक जो है ना कि इन इश्यूज के ऊपर, इन लॉज के ऊपर आगाही दी जाए, मुआशरे को तैयार किया जाए। जो सोशल रिफॉर्म है उसको, उसमें जो सिविल सोसाइटी है उसका भी आप कह लें कि डाउन द स्ट्रीम जो है वो लोगों के लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट करना, और इन्हीं प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं उनको इन्फोर्स करना उनका काम है। फिर जो सिविल सोसाइटी है उसका ये भी काम है कि वो मुआशरे की आंख है, वो जो सही और गलत है, जो वो स्टेट जहां अच्छा कर रही है वहां कोलैबोरेट करे, जहां अच्छा नहीं कर रही वहां स्टेट को रास्ता दिखाए, उसको जो है वो उसके अच्छे काम को प्रमोट करे, और जहां जरूरत है वहां पे वो गवर्नमेंट के साथ मिलके आप कह लें कि काम करे, उसको रास्ता दिखाए। उसके लिए अगर कोई अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं तो उनको गवर्नमेंट के सामने रखा जाए। तो ये कोलैबोरेट, इसमें मीडिया की भी उतनी ही जरूरत है, ताकि पब्लिक तक, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता सकता हूँ कि बहुत सारे गवर्नमेंट के जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जो अच्छे लॉज रिसेंट पास्ट में आए,
लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को उनके बारे में नहीं पता। अगर आपका ये तो आपका कुरान का भी हुक्म है, आप जानने वाला और ना जानने वाला कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये है कि वो जो नहीं जानता वो बिल्कुल बराबर नहीं है जानने वाले के। अगर एक शख्स अपने हक के बारे में जानता होगा या उसको पता होगा कि उसको प्रोटेक्टिव सर्विसेज कहाँ-कहाँ से मिल सकती हैं, उसको अगर उसको ज़रूरत पड़े, अगर खुदा न ख़ास्ता कोई किसी ज़ुल्म ज़्यादती का शिकार होता है, वायलेंस का शिकार होता है, तो उसको कौन-सा दरवाज़ा खटखटाना है, उसको सबसे पहले कहाँ जाना है। उसको अगर उसको पता है कि अगर उसने ये ऐप डाउनलोड की हुई है या ये वाला फ़ोन नंबर है या ये इदारा है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो वो यकीनन उस शख्स से बहुत आप कह लें कि बेहतर पोज़ीशन में होगा जिसको कुछ पता नहीं है। तो इन सारे कामों में सिविल सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर सकती है। जी। ओके सर, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वो चीज़ें हमें क्लियर हो गई और हम उसी के मुताबिक अब कोशिश करेंगे। सर, लेकिन आप थोड़ा-सा ये बताएँगे कि हम इनकी जो एनफोर्समेंट है वो रूरल एरियाज़ में किस तरीके से उसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं ख़ास तौर पे? अच्छा, क्योंकि ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लॉज की इन्फोर्समेंट का जो है वो रूरल एरियाज के अंदर। देखें, ये जो मसाइल जिन इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, अगर आप डाटा देखें ना, तो इसमें शायद आपको रूरल या अर्बन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर ना आए, क्योंकि लॉ की इन्फोर्समेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है इन अर्बन एरियाज एज इन रूरल एरियाज। थोड़ा फर्क है कि अर्बन एरियाज में अगर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या उनकी इदारों तक एक्सेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, लेकिन जो बुनियादी तरीकेकार है वो एक ही है। वो बुनियादी तरीकेकार ये है कि आप सबसे पहले अपने राइट्स को जानें। आपको ये पता हो, जैसे मैंने अभी बात की, कि आपने किस रेलेवेंट फोरम पे जाना है। मैं बड़ी हैरानगी की बात है कि हम लोग ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म पे एक यूनिवर्सिटी में गए और उस यूनिवर्सिटी में मैंने पूछा कि क्या आपको पता है कि कोई औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा होगा जिसकी ज़िम्मेदारी है, कोई नेशनल इदारा है, वो क्या है, उसका नाम क्या है? और वो मैं उसी इदारे के प्लेटफ़ॉर्म पे ही वहाँ खड़ा था और मेरे पीछे स्लाइड के ऊपर उसका लोगो भी लगा हुआ था। लेकिन ये कि पूरे हॉल में किसी स्टूडेंट, ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। आप गाँव को तो छोड़ दें, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, एंड नन ऑफ देम वाज़ अवेयर ऑफ कि ऐसा कोई इदारा एग्ज़िस्ट करता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कोई फ़र्ज़ करें अगर ऐसा-ऐसा इश्यू हो जाए तो आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे? तो पूरे हॉल के अंदर कोई जवाब देने वाला नहीं था। यानी कि हमारे लोग जो आम लड़ाई-बढ़ाई है, गाँव के देहाती लोग, वो तो उनको बड़ा पता है। लोगों को जो है ना कि वो 13, 20, 65 का बड़ा उनको पता है। उनको जो है ना कि वो आपको कह लें कि वो किस तरह की जो टर्म्स है ना, 302 का सबको पता है कि वो क्या चीज़ होती है ना। नंबर नहीं लेते लोग उसको, लेकिन उसके बाद बावजूद उनको पता है 337 की सारी किस्मों का लोगों को पता होता है गाँव के, क्योंकि उससे उनका वास्ता पड़ता है, वो उसको ज़रूरी समझते हैं। लेकिन ख़वातीन को या बच्चों की हिफाज़त के लिए बनाए गए जो कवानीन हैं या उससे रिलेटेड इदारे हैं, वो उसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों की ना होने के बराबर है। अगरचे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसे विक्टिम्स की मदद कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो चाहे गाँव है या शहर है, सबसे पहले आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस का पता होना चाहिए कि अगर वायलेशन होगी तो उसको किस तरीके से वो जो है वो कैटर करेंगे। ओके सर। सर, आपने जिस तरीके से थोड़ा बताया कि सर्वेज़ मतलब जो डिफरेंट डाटा है कि इस हिसाब से इक्वल है दोनों साइड्स पे रूरल और अर्बन में, तो आप थोड़ा-सा इसके करंट स्टैटिस्टिक्स और करंट जिसके अच्छा ट्रेंड्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं? अच्छा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इक्वल है, मैंने ये कहा है कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। डाटा के बारे में मैं शायद आपको ना बता सकूं, और उसमें ये है कि डाटा बहुत कॉन्टेस्टेड है। मैं खुद इसके ऊपर एक पेपर लिख रहा हूं कि डाटा की अनअवेलेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि कुछ डाटा है कोई एनजीओज अलग से करती हैं, उनमें से आपको तजाद मिलेगा। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग के, जो मीडिया रिपोर्टिंग होती है। तो अगर केस एक मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो वो खत्म हो गया। अच्छा, जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन डाटा कलेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ जब उनके पास केस बाकायदा तौर पे शुरू हो जाता है। तो प्रोसिक्यूशन का डाटा पुलिस के डाटा से नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस का डाटा वहां से शुरू होता है जहां एफआईआर शुरू होती है। प्रोसिक्यूशन का डाटा शुरू होता है जहां पे ट्रायल शुरू होता है।
तो इस तरीके से ये आपस में ये डाटा जो है ना कि ये मैच फिर आपका जो नेशनल पुलिस ब्यूरो है, जो कि आपका फेडरल इंस्टीट्यूशन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि वो सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है वो इकट्ठा करे सारे सूबों से लेके। अभी रिसेंटली जो है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, उसने एक जेंडर डाटा पोर्टल बनाया है और एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है, बट आई स्टिल थिंक कि वो काफी नहीं है, क्योंकि वो भी वो है कि जो खत लिख के मंगवाते हैं और जो डाटा आ गया उसको उन्होंने फीड कर दिया। तो एक कोई लाइव डाटा का डैशबोर्ड हो कि जहां पे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है वो उसी तरीके से रिपोर्ट हो जाए, वो उसी तरीके से वो कैलकुलेट हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। जो अभी पंजाब पुलिस ने एक काम किया है, जो इसमें वर्चुअल पुलिस स्टेशन का, वो बहुत अच्छा है कि आप कहीं से भी मैसेज करते हैं या उस ऐप के जरिए करते हैं तो उनके पास डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आई गो ऑन टेलिंग यू कि देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशंस एट अ गवर्नमेंट लेवल, फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, एंड देन एट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लेवल, लेकिन आपके पास जो भी फिगर होगा दैट मे बी कॉन्टेस्टेड वन। तो इसलिए मैं आपको फिगर तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैंने ये बात की थी कि इसको मैं इस तरीके से कहता हूं कि डाटा कम हो या ज्यादा हो, यानी कि हमें इस बात से गरज नहीं होनी चाहिए कि 100 लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हुए हैं या 10 लोग शिकार हुए हैं। बात यह है कि अगर एक भी शख्स जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार है तो दैट पर्सन रिक्वायर्स इक्वल प्रोटेक्टिव सर्विसेज। ओके सर। सर आप कुछ जो सक्सेसफुल इनिशिएटिव है जो एनजीओज़ की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से है, उनके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं? कोई जो लिए गए देखिए हैं अभी? इनिशिएटिव्स जो है ना, आप अगर उसको कैलकुलेट करें तो इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, उनकी कारकर्दगी पे सवाल हो सकता है आपका। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, 2012 का ये लॉ था और उसके तहत कमीशन बना। मैं खुद भी तकरीबन 2 साल इस कमीशन का लीगल एडवाइजर रहा हूँ। उस कमीशन ने बहुत सारे, आप कह लें कि जो अवेयरनेस कैंपेन की, बहुत सारी लेजिस्लेशन जो है उसको सपोर्ट किया, विमेन इश्यूज जो हैं उनको हाईलाइट किया। तो इस एतबार से आप कह लें कि नेशनली विमेन जो उसमें राइट्स के पर्सपेक्टिव से और जेंडर बेस्ड वायलेंस को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से ये जो इदारा है ये इन इट सेल्फ उसका वजूद बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिमिलरली प्रोवेंशियल कमीशंस ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप कह लें कि इस वक्त तकरीबन सारे ही सूबों के अंदर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस मुख्तलिफ नामों से हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट है, या चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, या चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है, लेकिन सारे सूबों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे के सारे जो है किसी न किसी तरीके से विमेन एंड चाइल्ड राइट्स को सपोर्ट करते हैं। फिर ये कि ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन के लिए जो 2018 का एक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है कि जिसके अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं और उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा, फिर आपका जो लेजिस्लेशन को अगर आप देखें तो 2018 का ही आपका एक्ट है जो कि ट्रैफिकिंग को देखता है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018। और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कमर्शियल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है फॉर द जो ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकना। अब उसके अंदर भी जो है वो विक्टिम रिहेबिलिटेशन की भी बात है और जाहिर है परपेट्रेटर को तो वो सजा देता ही देता है। तो आम सजा 7 साल है, लेकिन अगर विक्टिम बच्चा या खातून हो तो वो सजा 10 साल तक हो सकती है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे जो है वो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स नजर आएंगे। एंटी रेप एक्ट का मैंने जैसे बात की, एंटी रेप एक्ट के तहत स्पेशलाइज्ड कमेटी बनी जो एक्सपर्ट्स की है, और देखें वो सारे वॉलंटियर हैं जो अपनी सर्विसेज, इसका मतलब है कि एक्सपर्ट्स भी लोग भी चाहते हैं कि ये काम मुआशरे के अंदर ना हो। फिर एंटी रेप एक्ट के तहत ही जो है वो स्पेशलाइज्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बने। उसी के तहत जो है अभी एंटी रेप क्राइसिस सेल, जो कि कुछ मॉडल क्राइसिस सेल बने हैं, और उसमें इस्लामाबाद के अंदर पिम्स के अंदर जो है वो मौजूद है। यूएनएफपीए ने, आपने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सपोर्ट कर सकती हैं, तो उसमें उस सवाल का दोनों का जवाब है कि वो जो टेक्निकल सपोर्ट है वो यूएनएफपीए ने दी, और उसको ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंट किया वो लीगल एड सोसाइटी ने इम्प्लीमेंट किया इन कंसल्टेशन और एडवाइस विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ।
तो दिस इज अ वे टू वर्क के सारे इदारे जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। तो यू मे फाइंड अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। इसी तरीके से अभी जो पंजाब के अंदर ये वुमेन सेफ्टी ऐप वाला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो काम है। फिर कुछ अर्सा पहले जो ज़ैनब अलर्ट जो अथॉरिटी बनी, वो भी फेडरल लेवल के ऊपर काम करती है। उसमें तकरीबन ये कि उनके पास जो बच्चे आप कह लें कि मिस हुए, और ये कहते हैं कि डेटा कहता है कि 3-4 साल, 3-4 महीने, सॉरी, 3-4 घंटे अगर गुजर जाएं और वो बच्चा ना मिले, तो दैट मे लाइकली बी अब्यूज्ड। तो उसमें तकरीबन मोर देन 70% बच्चे जो है ना वो रिकवर हुए हैं उस ऐप के जरिए, जब मिसिंग होने की इतला दी गई। तो दे मे बी सो मैनी इनिशिएटिव्स, लेकिन जाहिर है बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, और उसी तरीके से उसके मसाइल भी बहुत बड़े हैं। Okay, जी। sir. Thank you. Sir, moving towards our next question. Sir, even though Article 25 of Pakistan's Constitution जो है वो ये promise करता है that it promises the equality under the law without discrimination based on sex, why do you think that there is need for specific laws, protection and quota system for the women? अच्छा, वो मेरे सोचने की जरूरत नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सोचा हुआ है। वो जो आपने 25 का जिक्र किया है, तो जो 25 के अगर आप सब आर्टिकल 3 का देखें, तो वो सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल लॉज फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन बना सकती है। तो देखिए, बुनियादी जो बात है वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ आपका अफर्मेटिव पॉलिसीज बनाने का है, अफर्मेटिव मेजर्स का, या जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यानी कि मुआशरे का अगर एक तबका बहुत महरूम है, तो उसको बराबर पे लाने के लिए फिर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो इक्वालिटी नहीं बल्कि इक्विटी क्रिएट करे। तो ये अफर्मेटिव मेजर्स को अगर आप समझेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को समझें, आप इक्विटी को समझें, तो फिर आपको जो स्पेशल मेजर्स लेने का स्टेट का जो इख्तियार है, उसकी भी जो है वो बात समझ आ जाएगी। मैं एक बिल्कुल सादा सी मिसाल इसकी आपको कोट करता हूँ कि एक शख्स की एक टांग बांधी हुई है और दूसरा पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है रनिंग की, और अब आप जो है ना उसको दोनों को इकट्ठे ग्राउंड में उतार देते हैं और आप कहते हैं कि यू गॉट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी और आपका मुकाबला है। तो जाहिर है कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वही जीतेगा। तो हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से सदियों से इस सोसाइटी के अंदर वो मर्द ही सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे हैं, और उसके अंदर जो कमजोर तबका है और जो मतलब वन आर दी अदर वे खवातीन जो है, इसके अंदर उनको बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ा। बाकी जो वल्नरेबल तबका होता है, ट्रांसजेंडर्स है, वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। बच्चे और बूढ़े जो है, ये वो वाला तबका है, या स्पेशल पर्सन जो अपने आप को उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से एक जो है वो बड़ा ग्रोन अप नॉर्मल शख्स जो है वो कर सकता है। तो इसी तरीके से जो खास जरूरतें, बच्चे की अपनी जरूरतें हैं, उसके लिए आपको ज़ाहिर है स्पेशल मेजर्स लेना पड़ते हैं। बच्चे को आप फीडर से दूध पिलाते हैं, जबकि आप खुद हम ग्लास के साथ पी सकते हैं। तो ये है कि इसी तरीके से जो है ना वो रियासत अगर अपने आप को माँ जैसा समझती है, तो फिर उसको ऐसे मेजर्स लेना पड़ते हैं। उसको इस तरीके की पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको कि एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अफर्मेटिव मेजर्स कहते हैं, वो लेना पड़ते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर इक्विटी हो। Thank you so much, मेरी sir. ये बहुत बैटरी रह गई है, मेरे फोन की बैटरी रह गई है 3%। इफ वी हैव अ मोर क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे लैपटॉप पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या आई डोंट नो कि आप लोगों का कैसे चलेगा ये निज़ाम। sure, sir. I guess हम नहीं, वेट कर ठीक सकते। है, मैं बस कुछ कोई, मेरा ख्याल है चल जाएगा काम। ओके सर। सर मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये पॉइंट जो है वो हमें क्लियर हो गया। सर आपके ख्याल में कोई बेहतरी आई है आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ फीमेल जजेस इन फैमिली कोर्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस केसेस कंसीडरिंग द मोस्ट विक्टिम्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस आर वुमेन? अच्छा, देखें, जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज है ना, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज को अगर आप देखें, तो वो पिछले कोई 8-10 सालों में बने हैं सारे ही सूबों के अंदर। अच्छा, अगर आप फीमेल जजेस की इंक्लूजन की बात करें, देखें उनकी तादाद के बढ़ने की बात करें, तो ज़्यादातर वो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल पे पिछले 8-10 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खवातीन इस शोबे में आई हैं। तो जहाँ तक बात है इसके अंदर के क्या उसमें बेहतरी आई होगी, तो ये आपको ये पहले तो ये देखना है कि जो लॉ है वो क्या कह रहा है।
लॉ जो है वो जज को अपॉइंट करता है, ना कि किसी मेल या फीमेल को अपॉइंट करता है। वो आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसी तरीके से जब आप स्टूडेंट हैं तो लॉ के स्टूडेंट हैं तो वो लॉ आपका या एग्जाम आपकी जेंडर को नहीं देखता, वो आपके पेपर्स को, आपकी काबिलियत लियाकत को देखता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। तो ये सेम केस है कि जब एक जज होगा तो उसको इस बुनियाद पे फैसला नहीं करना कि वो खातून है। आप ये तो कह सकते हैं कि एक खातून के सामने खातून बात करने में शायद कंफर्टेबल हो, बनिस्बत इसके कि वो अपनी प्लाइट जो है वो किसी मेल को बताए। लेकिन जब उसने फैसला करना है तो उस फैसला यानी कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सकता है। ऐसी कोर्ट में इन्वायरमेंट बनाई जा सकती है जिसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट आपकी, एक खातून की स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम जो है वो एनी सॉर्ट ऑफ कोerजन या ना किसी भी तरह का उसके ऊपर प्रेशर ना हो। लेकिन जो जज है उसको कहना कि वो जज मेल जज है या वो फीमेल जज है, मेरा ख्याल है कि दैट्स द वायलेशन ऑफ द लॉ एंड इवन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन, वो चाहे मेल है या फीमेल है। इसका मतलब ये है कि अगर वो फीमेल है तो वो मेल को अच्छे तरीके से नहीं सुन सकेगी। तो तो ये चीज है, बुनियादी बात ये है कि यू आर टू फॉलो द लॉ, और लॉ के अंदर ऐसा कहीं नहीं है, अब तक मैंने नहीं पढ़ा हुआ कि किसी लॉ के अंदर ये लिखा हो कि ये केस सिर्फ फीमेल ही सुनेगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब ये कि बहुत रेलेवेंट बात हो सकती है। अ जज शुड बी अ जज, नॉट अ मेल और अ फीमेल जज। Okay, sir. Thank you so much. I really appreciate your thoughts on this. Sir, my next question is that how has the Criminal Law Amendment, offense related to Rape Act 2016, impacted the prosecution and conviction rates of rape cases in Pakistan? देखिए, जो कन्विक्शन रेट का इशू है ना, ये तो बड़ा कॉन्टेस्टेड है। मुख्तलिफ डाटा है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 4-5% है कन्विक्शन रेट, लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का ताल्लुक है कि उसने प्रोसिक्यूशन को कैसे, तो देखें उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 की अमेंडमेंट ये है कि आप जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप उस विक्टिम को ये हौसला दे रहे हैं कि आपकी सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। आप जो है ना कि सामने आए और आप बात करें, आप कंप्लेंट करें, आपका पूरा प्रोसेस आपके साथ है। इसी तरीके से अगर कोई ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी करेगा जानबूझ के प्रोसेस में, तो उसके लिए सजा है 3 साल तक। इसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में रुकावट बने तो उसके लिए भी सजा है। अच्छा, इसी तरीके से 2016 में डीएनए को कंपलसरी किया गया कि डीएनए का जो है ना कि वो पर्टिकुलरली सेक्सुअल अब्यूज केसेस के अंदर जो है वो डीएनए सैंपलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर जो कोई भी पीएमडीसी के साथ रजिस्टर्ड हो, उस डॉक्टर को ऑथराइज किया गया। अगरचे ये चीज़ कभी प्रैक्टिस में नहीं आई, लेकिन ये आज भी लॉ के अंदर एग्जिस्ट करती है कि कोई भी जो है वो मेडिकल ऑफिसर जो है वो एग्जामिनेशन कर सकता है। अच्छा, फिर ये है कि उसके बाद फिर आपके जो प्रोसीजर्स हैं उनको आप फैसिलिटेटेड हो। जैसे ये बाद में आसफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक़्त जब जीबीवी कोर्ट शुरू हुई, तो उस वक़्त पहले तौर पे शुरू हुआ कि पर्दे का इंतज़ाम हो, सेपरेशन हो, अक्यूज़्ड और आप विक्टिम को आमने-सामने नहीं करें। तो इन सारे मेजर्स का मतलब ये है कि अच्छा, फिर ये है कि आप उसकी स्टेटमेंट सॉरी विक्टिम की स्टेटमेंट जो है वो उसके घर जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। इमीडिएटली जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ये अच्छा, फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन थी, वो ये कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी मर्जी से होगा। अगर वो नहीं चाहती तो उसका एग्जाम नहीं हो सकता। अगरचे इसको कहा गया कि ये मतलब परपेट्रेटर जो एक्यूज्ड है उनके राइट्स के खिलाफ है, लेकिन लॉ यही है कि जो एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जबरदस्ती भी किया जा सकता है। जाहिर है, अगर मेरे ऊपर इल्जाम है तो मैं क्यों चाहूंगा मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हो, मैं तो इनकार ही करूंगा ना। तो इसलिए मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन अगर मैं एक्यूज हूं तो जबरदस्ती करवाया जा सकता है, लेकिन विक्टिम से उसकी कॉन्सेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। तो ये सारे वो मेजर्स हैं इस लॉ के अंदर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को विक्टिम फ्रेंडली बनाते हैं।
और जाहिर है कि अब डाटा के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट तो है। इससे पहले और बाद की सिचुएशन में फ़र्क तो है। जी। सर थैंक यू फॉर दिस डिटेल्ड एनालिसिस। सर इसी तरीके से जो ऑनर किलिंग के अंदर अमेंडमेंट आई है उसके बारे में भी काइंडली थोड़ा बता दें कि उसने किस तरीके से उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया, रिड्यूस किया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो अमेंडमेंट्स आप कर रही हैं, तो ये मेरे हाथ से गुजर के गई हैं। मैं उस वक़्त मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में लीगल एडवाइज़र था। तो ये मेरे हाथ से गुजरी। अब उसके पीछे फिर जो उस वक़्त की पार्लियामेंट्री डिबेट थी, उससे भी, और जो इश्यूज़ थे, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, थोड़ा उससे भी आगाह हूँ। ऑनर किलिंग का लॉ इससे पहले एग्जिस्ट करता था। आपकी 2004 के अंदर जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट थी, उसके अंदर ऑनर किलिंग को जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका था एज अ क्राइम। और उससे पहले ये है कि ये सबसे बड़ा डिफेंस होता था कि मैंने जी गैरत के नाम पे आके जो है ना वो मार दिया, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत ने जोश मारा, तो ताकि जो सजा है वो मिनिमल साइड पे आ जाए, मैक्सिमम पनिशमेंट ना मिले। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन हुआ है, वो ये हुआ कि सेक्शन 299 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो है, उसके अंदर चेंजेस करके तो इसमें इसको फसाद फिल अर्द की डेफिनेशन में डाला गया। यानी कि नाउ द ऑनर किलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फसाद फिल अर्द। अब ये कि अगर कोई ऑफेंस जो है वो फसाद फिल अर्ज की डेफिनेशन में आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लेनेंट हाँ करे या ना करे या मान जाए या वो विथड्रॉ करना चाहे, वो विथड्रॉ नहीं कर सकता। दिस विल बी अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, और इसके अंदर स्टेट कंप्लेनेंट होगी। अब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट है कि चूंकि मारने वाला अक्सर भाई होता है, बाप होता है, करीबी रिश्तेदार होंगे ना ऑनर किलिंग के केसेस में, तो उसके अंदर फिर जाहिर है कि बाद में कुछ वक्त के बाद माफ कर देते हैं। तो वो जो माफ करने वाला एलिमेंट है, 2015 जो 4 की जो अमेंडमेंट है, उसके अंदर ये था कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो राजीनामा हो सकता होता था। तो जाहिर है कोर्ट उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है। ये 2016 की अमेंडमेंट ने ये रास्ता बंद कर दिया कि ऑनर किलिंग जो है वो अगर होगी, तो इसका मतलब ये है कि फिर उसमें किसी भी सूरत के अंदर जो है वो राजीनामा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि, और इसको चूंकि ये फसाद बिल अर्ज है, ये एक शख्स के खिलाफ नहीं, ये पूरे मुआशरे के खिलाफ जो है वो ये जुर्म है। तो इसलिए आई थिंक कि ये चीज़ जो है ना कि इसने बहुत सारी जगहों पे ये कन्विक्शन का बायस भी बना होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मूविंग टूवर्ड्स द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने जिस तरीके से बताया कि पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो इनिशिएटिव लिए गए हैं या साथ साथ चल रहे हैं जो कि ऐसे सर्वाइवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर आप काइंडली कुछ रिसोर्सेज जो अभी करंटली अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, रिसोर्सेज की जो, जहाँ तक रिहेबिलिटेशन की बात है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर जगह पे ही बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जहाँ से जैसे मैंने बात की कि आपके विमेन कमीशंस हैं, सारे सूबों के अंदर मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, हर सूबे का कमीशन जो है वो मौजूद है। उन कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी होती हैं, वो किसी को सुन भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं। इसी तरीके से आपका एनसीएचआर है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उसके पास भी कंप्लेंट सुनने का इख्तियार है। अच्छा, फिर बच्चों के लिए अलग से जो है ना वो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बना हुआ है। तो ये आप देखें कि फेडरल कमीशन हैं, फिर प्रोवेंशियल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, प्रोवेंशियल कमीशन जो है वो ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है। अब ये सारे सूबों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एग्जिस्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स अपने केस को, वैसे तो जाहिर है पुलिस मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने केसेस को या अपने इश्यूज को उस तरीके से परसू नहीं कर सकता, तो अगर वो इन इदारों के पास कंप्लेंट लेके जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो इदारा इसके साथ खड़ा होगा। जैसे अभी आप देखें कि बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली, वो मैं नाम मेरे ज़हन से बच्ची का निकल गया, लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं वैसे भी, कि जिसमें वो वायलेंस का बड़ा, इसमें आप कह लें कि एक मशहूर केस था किसी जज के घर, तो उसके अंदर अब वो वालिदैन की तो वो हैसियत नहीं है कि वो उस केस को परसू कर सकें। तो उसके अंदर जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है और जो एनसीएसडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, इसी तरीके से ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान है। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना कि उसको फॉलो अप कर रही हैं।
कोर्ट के अंदर। तो इस तरीके से ये है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ये है कि हमें पता होना चाहिए। और देखिए सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हमारा वो पुलिस है, ऐसे केसेस, वायलेंस के केसेस में। जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकता है, जिसकी पाकिस्तान भर में हर जगह पे एक्सेस है, वो आपका। अब मैं ये कहूंगा कि ठीक है, पुलिस के अंदर मसाइल मौजूद है, लेकिन स्टिल वील हैव टू बिलीव ऑन आवर सिस्टम। अगर आप पुलिस की मदद करेंगे, यकीनन पुलिस भी आपकी मदद करेगा। आज भी पाकिस्तान भर में आपका जो सबसे इफेक्टिव नंबर है वो 15 है, कि जब आप 15 पे कॉल करेंगे, इसी तरीके से इमरजेंसी की सूरत में आपके पास 1122 भी है, कि अगर कोई एक्सीडेंट या सीरियस इंजरी या वो वाली। तो ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इनको जो है वो हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और यकीनन हो सकता है उनका रिस्पांस जो है वो उसको वो क्वेश्चनेबल हो, बट स्टिल दे आर स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अल्टीमेटली जो है वो उन्हीं को ही आपने देखना है, क्योंकि आप खुद तो प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। अगर कोई इंसिडेंट होगा तो वो उन्होंने ही प्रोसिक्यूट करना है। तो इसलिए उन्हीं को साथ लेके चलना चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके सर। सर, आपके ख्याल में हाउ कैन एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम बी यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट द जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान? लेकिन ये आपका सबसे अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन है, सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो है ना, ये प्रोहिबिशन के ऊपर बात कर। हमने अब तक जितनी भी बात की, वो सारी की सारी हमारी बात जो है वो पोस्ट इंसिडेंट थी। क्रिमिनल लॉ तो जब कुछ होगा तो फिर आप उसको वो रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन असल चीज तो ये है कि इंसिडेंट हो ही ना। उसके लिए एजुकेशन जो है वो बड़ी जरूरी है, उसके लिए माइंड सेट जो है उसको चेंज करना बड़ा जरूरी है। कि ये जो एक हमारे यहाँ जो आप कह लें कि पावर इम्बैलेंस है, कि किसी एक को घर के अंदर जो है ना वो ताकतवर समझा जाता है, दूसरे को कमजोर समझा जाता है। किसी एक शख्स को आपने ऐसा रोल दिया हुआ है कि हाँ, अगर वो आपकी तरबियत के लिए थोड़ी बहुत आपकी फैंटी शैंटी भी लगा ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ये जो वायलेंस को हमने डोमेस्टिकली इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है, ये चीज जो है ना, कि इसको इस माइंड सेट को बदलने की जरूरत है। मैं आप ये वायलेंस क्यों क्यों होता क्यों है ना, आपको इंसान को, मैं कहता हूं कि गुस्सा बड़ा अक्लमंद होता है। लोग कहते हैं कि गुस्से में अकल मारी जाती, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं मारी जाती। आपको कमजोर पे गुस्सा आता है, अपने से ताकतवर पे कभी गुस्सा नहीं आया। ताकतवर का आपका उसका कुछ चूंकि कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि वायलेंस का शिकार जो है वो सोसाइटी के अंदर कैटेगरी होती है लोगों की, जिसको कमजोर समझा जाता है। और हमारे मुआशरे में बड़े आसानी से जो है ना, कमजोरी का लफ्ज जो है उसको औरत के साथ, बच्चों के साथ जोड़ा हुआ है, कि औरत कमजोर है। वो बिल्कुल कमजोर नहीं है, कमजोर यहां से हो सकती है, वो वैसे कमजोर नहीं है। अगर आपको पता है अपने राइट्स का, तो आप बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप तब तक कमजोर हैं जब तक आपको ये बताया गया है कि आप कमजोर हैं और आपने उसको इंटरनलाइज किया, कर लिया हुआ है। ये शख्स को, कि एक शख्स को आप कहें कि वो कमजोर है और दूसरे को कहें कि वो ताकतवर है, कि आपके जो है ना कि वो 25 साल की जो है ना कि वो बच्ची के साथ जो है, खातून के साथ 7 साल का बच्चा बाजार में सौदा लेने जाए उसकी हिफाजत के लिए वो हो, तो ये वो चीज है कि जो आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी ने आपका माइंडसेट बनाया हुआ है। ये चीज सिर्फ एजुकेशन से जा सकती है, सूझबूझ से जा सकती है। इसके ऊपर मुआशरे में डिस्कशन की जरूरत है। और इसमें जो है वो तबका जो अपने आप को जिसने पैर पीछे रखा हुआ, उसको भी सामने आने की जरूरत है। तो ये माइंडसेट सिर्फ एजुकेशन से चेंज हो सकता है। इसके लिए आप करिकुलम जो है वो अमेंड कर सकते हैं, करिकुलम के अंदर ऐसी चीजें डाल सकते हैं कि भाई जो वायलेंस है वो किसी भी लेवल के ऊपर, ना वो मजहबी लेवल के ऊपर, ना वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के ऊपर अलाउड है, ना वो किसी इंटरनेशनल ट्रेडिशन या इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ना ही उसको किसी मुआशरती इखलाकी मैार के ऊपर उसको ठीक किया जा सकता है, उसको सही समझा जा सकता है। तो ये जो चीज है, जब आप इसको समझेंगे कि ये जो गलत है वो गलत है एट ऑल लेवल्स, उसके लिए कोई जवाज नहीं है। ये चीज जो है करिकुलम्स में लाने की, और ये चीज बचपन से बच्चों के जहन में डालने की जरूरत है। जी। सही, आपने बिल्कुल सही बात की है सर। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि मीडिया का भी इसमें बहुत रोल होता है उसकी अवेयरनेस में, तो हम उसके लिए क्या जो है वो स्टेप्स उठा सकते हैं कि? देखें, मीडिया का जो बदकिस्मती के साथ हमारी कमर्शलाइजेशन ज्यादा है। वरना अगर आप देखें तो जो भी
टीवी चैनल जिसको लाइसेंस मिलता है, उसकी जिम्मेदारी में है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए स्पेसिफिक एयर टाइम रखे। ये उनकी लाइसेंस की जो है वो शराइत के अंदर एक चीज मौजूद है कि फॉर मैसेजेस फॉर द पब्लिक गुड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इशू करेंगे। तो बिल्कुल उनकी मीडिया की जिम्मेदारी भी बनती है, और उसके अंदर के आप, और इसी तरीके से जो बाकी फिर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो उन जो लॉज हैं उनको प्रॉपर जो है वो इन्फोर्स करवाए कि जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन और मालूमात जो है वो जो डिसिमिनेट हो सके। तो ये तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो बुनियादी बात ये है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है उसको इन्फोर्स किया जाए। वो जो टाइम उनके लाइसेंस की बेसिक कंडीशन है, इससे आगे इखलाक शुरू होता है कि वो कितना टाइम लेते हैं। फिर ये है कि गवर्नमेंट और जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारा अपना अपना रोल, आपके जैसे मतलब एजुकेशनल डिबेट्स हैं, ये अभी आप जो प्रोग्राम कर रही हैं ये इस सिलसिले की एक कड़ी है। इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जो है स्कूल के लेवल के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ये कोई इशू सिर्फ ये है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, मुँह बंद रखेंगे, तब तक ये मसले हल नहीं होते। लेकिन अगर आप इसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें, तो सोसाइटी में यकीनन सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब करना क्या है कि आपने सोसाइटी में ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि जहाँ पे डायलॉग हो सके, डायलॉग के दरमियान लड़ाई ना हो, सिर्फ डायलॉग हो और आर्ग्यूमेंट्स हों। जी। सर थैंक यू सो मच। सर दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। आपने काफ़ी हद तक उसको क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन सर थोड़ा सा यही बता दें कि हम लोग जिस तरह एज ए इंडिविजुअल और एज ए कम्युनिटी हम इस चीज़ को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जैसे कहते हैं कि आपकी चैरिटी बिगिन्स एट होम वाली बात है कि पहले तो आप अपने आप को समझें। अपने आप का पहले तो ये है कि आप अपने आप को, मुझे किसी और पे इख्तियार नहीं है, लेकिन अपने ऊपर तो इख्तियार है ना। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इसके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, वो कानूनी ज़िम्मेदारी है, वो मुआशरती इखलाकी ज़िम्मेदारी है, वो मेरी तालीम की ज़िम्मेदारी है। जो जिन इदारों से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उन इदारों का किरदार का सवाल है कि उन्होंने मुझे कैसे ट्रेन किया है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, अपने आप को सीखूँ, इससे मुतल्लिका सीखूँ भी, फिर अपने जो आस-पास के लोग हैं, उन तक ये बात पहुँचाऊँ। तो अगर आप सेल्फ से शुरू करें, तो इससे आगे कोई बाकी फिर ज़ाहिर है कि आप अगर बात करना शुरू करेंगे लोगों के साथ, आप इसी तरीके से अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म को, आजकल हर बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, हर बंदे के मल्टीपल सोर्सेज़ हैं सोशल मीडिया के। यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, वहाँ पे अगर आप वायलेंस के ऊपर भी बात कर लें, कि जैसे मैंने कहा कि ये ना इसका कोई इखलाकी जवाज़ है, ना मज़हबी जवाज़ है, ना ही इसका कोई कानूनी जवाज़ है। तो ये किसी भी लेवल के ऊपर जो है ना, यानी कि आप बुरे को हमारे वो लोग हैं कि देखें कि एक बंदा हाथ में बंदूक लेके वो फायर करता है और उसके बाद वो ऐसे-ऐसे करके चलता है, कि उसने जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो जब इसी तरीके से जो है ना कि आप देखें कि जब तक आप सुल्तान राही कल्चर जो है उससे खुश होते रहेंगे कि आपने हाथ में गंडासा पकड़ा हुआ है, आप वायलेंस को एप्रिशिएट करते रहेंगे, तब तक जो है ना कि वो कैसे आप जो है ना कि वो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आपको उस चीज़ को एप्रिशिएट करना, आपको पीस को एप्रिशिएट करना है, वायलेंस को एप्रिशिएट नहीं करना। तो ये काम आप जिस भी लेवल के ऊपर कर सकें, दैट्स हाइली रिक्वायर्ड एंड डिज़ायरेबल एंड इम्पोर्टेंट। सर जी। जज़ाकिल्लाह, ये काफ़ी आई गेस प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो अगर हम लें तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सर दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। नाउ इफ़ यू सो पोलाइटली अलाउ, कैन वी टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? जी, जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। Sir, Mr. Muhammad Zain asks, in our society, male victims face unique challenges in seeking help. Are these challenges somehow due to legislation, and or are these socially influenced? देखिए देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अब इन्होंने कहा कि जो है ना कि वो मेल को जो है ना, वो बात ये है कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि एक खातून को जाके मेल से वास्ता पड़ता है, मेल पुलिस ऑफिसर, मेल जज, जो है ना कि वो मेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सारे। तो अगर मेल है तो उसको मेल से वास्ता पड़ता है, तो उसको क्या मसला है? बात ये है कि लॉ जो है वो ये तो रिकॉग्नाइज नहीं करता जिन्स को। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब ही ये है
जैसे मैंने शुरू में कहा कि उसमें मेल और फीमेल की कोई बात नहीं है। जो भी विक्टिम है, जो भी विक्टिम है, कानून उसके साथ खड़ा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने कानून का दरवाजा प्रॉपरली खटखटाना है। तो ये कोई उसके अंदर, और अगर कहीं पे आपको अफर्मेटिव मेजर्स नजर आते हैं, तो वो अफर्मेटिव मेजर्स का मतलब यही है कि एक आपके मुआशरे के अंदर वो वाला सेगमेंट है जो बहुत मसलन ये है कि अगर एक फर्ज करें, एक लड़का है, अगर वो रात को 12-1 बजे तक आवारागर्दी करता रहता है, और इसी तरीके से अगर एक लड़की है वो 12-1 बजे तक जो है ना वो बाहर फिर रही है, तो क्या दोनों को एक ही तरीके से सोसाइटी ट्रीट करती है? डिफरेंटली ट्रीट करती है। तो देर आर सर्टन ऑलरेडी एडवांटेजेस फॉर मेल, और उसको इतना अपने आप को विक्टिम शो करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ गलत हुआ है, वायलेंस हुआ है, तो उसके लिए जाहिर है कि कानून सबके लिए एक। एक बात जहन Okay, में sir. रखें, कानून सबके लिए एक है, सिर्फ प्रोसीजर्स में कहीं फर्क हो सकता है। और वो प्रोसीजर्स फैसिलिटेट करने के लिए वो इसलिए है कि चूंकि आपका सोशल सेटअप फैसिलिटेट नहीं करता औरत को, तो वो कहीं ना कहीं कानून ने जो कमजोर तबका है उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो कानून बना है। मसलन ये है कि अगर रैंप एक बना है कि एक स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है वो बैंक में चला जाए, तो अंदर बैंक के कवानीन एक ही जैसे हैं। वो जो रैंप बना है वो कोई उसको अजाफी सहूलत नहीं मिल रही, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बैंक तक एंट्री है। इसी तरीके से अगर एविडेंस का कोई प्रोसीजर इस तरीके का है कि जिसके अंदर आप यूं कह लें कि जैसे विक्टिम की, अगर खातून विक्टिम है तो उसके घर जाके उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है, तो इसका मतलब या उसकी जो एविडेंस है वो थ्रू वीडियो लिंक रिकॉर्ड की जाती है, तो अल्टीमेटली कन्विक्शन तो एविडेंस की बुनियाद पे ही होनी है। यानी कि ये तो सिर्फ एक फैसिलिटी है कि वो एविडेंस देने के लिए आ जाए, क्योंकि आपका अब तक की ट्रेडिशंस ये बताती हैं कि खवातीन जो है वो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन के डर से वो अवॉइड करती हैं आपके जस्टिस सिस्टम के सामने आने से। तो इसलिए ये मर्दों को कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ज्यादती है किसी के साथ तो उसके लिए यकीनन, फॉर एग्जाम्पल अगर चोट किसी को लगती है, तो कानून में वो चोट खातून को लगी है या बच्चे को लगी है, उसकी एक ही सजा है। और वो ये नहीं देखेगी कि सजा उसको देखने वाला, उसको वो मेल है या फीमेल है, वो चोट लगाने वाला, दोनों एक्यूज्ड है, दोनों के लिए एक ही सजा है। Sir, time almost हमारे पास काफ़ी कम रह गया है, तो sir kindly can we take one last question and then we'll move towards the concluding remarks. जी प्लीज। Sir, last question is from Muhammad Talha Ranja. Uh, how can the legal system in Pakistan be improved to better support and protect the rights of intersex individuals? अच्छा, ये बड़ा आप कह लें कि कॉन्टेस्टेड क्वेश्चन है। और देखें, आपके पास एक ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 बन गया है। आप सिस्टम के अंदर एक तो आप ये देखें कि बहुत सारी जगहों पे लॉ के अंदर वर्ड पर्सन इस्तेमाल होता है। जब आप पर्सन की इस्तेमाल करते हैं, पर्सन को देखते हैं, तो इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी सेक्स, वो मेल है, फीमेल है। जब एवरी वन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो सारे कानून के सामने सारे बराबर हो गए। लेकिन फिर अफर्मेटिव मेजर्स की बात आती है, तो उस पर मोस्ट रिसेंटली तो इन ब्रीफ आपके पास ये कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसको पूरे तौर पे इन्फोर्स करें आप। Okay, sir. जी। Thank you so much. Sir, before we finally conclude, uh, sorry, sir, before we finally conclude, is there any message or concluding remarks you want to give to our participants? Sorry, sir, we have just one last question, if you allow. जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। How does the legal framework in Pakistan navigate the tension between cultural traditions and international human rights standards in addressing gender-based violence, especially in regard to the contradictions? Is current system competent to deal matters in accordance with international standards while preserving cultural traditions? देखिए, जहां तक कल्चरल ट्रेडिशंस, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में बात की कि पाकिस्तान तकरीबन सारे ही जो रेलेवेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज हैं उनका सिग्नेटरी है। तो इट्स पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स दोज इंटरनेशनल लॉज।
अब उसको इंटरनेशनल लॉ के इन्फोर्समेंट का एक तरीकेकार है, जाहिर है उसके लिए आपको डोमेस्टिक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो पिछले कोई 10-15 साल के अंदर बहुत सारी लेजिस्लेशन जो है वो हुई है इन लाइन विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज टू विच पाकिस्तान इज सिग्नेटरी। अब अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊं तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि देयर बीन सो मैनी इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड, देयर बीन सो मैनी लॉज अमेंडेड और न्यूली लेजिस्लेशन जो है वो इनेक्ट हुई टू in line with our own constitutional responsibilities और in line with the Pakistan's international obligations। एक बात जहन में रखें कि जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज जो है वो आपको बाहर से मिले। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है जो आपको जो है ना स्पेशल मेयर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करता है ना, आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 3। और जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है वो 1989 का है, यानी कि वो कन्वेंशन बाद का है, जबकि स्पेशल मेयर्स लेने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन आपका पहले से बात कर रहा है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब बात यह कि क्या इंटरनेशनल जो ट्रेडिशंस हैं पाकिस्तान का लॉ उसके पैरेलल है या नहीं है, तो इसका एक आसान सा जवाब ये है कि आई कैन कोट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड एग्जांपल्स इन विच ड्यूरिंग एटलीस्ट पिछले कोई 20-25 साल में पाकिस्तान ने बहुत सारी लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए हैं इंटरनेशनल, और इवन पाकिस्तान की कुछ लेजिस्लेशन ऐसी हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव है। अच्छा, मसला कहाँ पे आता है? अच्छा, एक और इसी के साथ में आप के साथ जो बात प्रैक्टिसेस की बात की, आपकी ट्रेडिशंस की, तो जो ट्रेडिशंस है, द ट्रेडिशंस मे नॉट बी as required by your religion or by law or by constitution or even by international law। ट्रेडिशन आपकी गलत भी, ऑनर किलिंग भी एक ट्रेडिशन है, आपके मुआशरे के अंदर है ना। औरतों को मारना पीटना भी ट्रेडिशन है। तो क्या इस ट्रेडिशन को जो है ना कि क्या हम इसके हमआहंग लॉ बनाना चाहते हैं? सेक्सुअल अब्यूज जो है हिस्टोरिकली, अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल अब्यूज हिस्टोरिकली इस खित्ते के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो क्या इस ट्रेडिशन को, पहली बात ये कि क्या ऐसी इसको हम ट्रेडिशन कहें? इसके लिए लॉ के अंदर ट्रेडिशन नहीं, हार्मफुल प्रैक्टिसेस की टर्म इस्तेमाल होती है। 2011 के अंदर जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई उसके तहत जो है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक पूरा चैप्टर जो है वो ऐड हुआ। वो चैप्टर का नाम जो है कि वो उसमें है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और उसके अंदर सेक्शन एक जिसका नाम है हार्मफुल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन। तो हार्मफुल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस ना, अब जैसे बन्नी सवारा, ऑनर किलिंग, अब ये वो चीजें हैं जो रवाज हैं जो मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वटे सटे की शादी, ये सारे। तो क्या इनको जो है ना कि आप जो है वो कायम रखना चाहते हैं? और दूसरी बात ये है कि वक्त के साथ साथ ट्रेडिशंस भी बदलती हैं, आपकी अच्छी ट्रेडिशंस भी बदलती हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें जो हमारी पुरानी थी वो खत्म कर दी, और बहुत सारी चीजें जो हमारी पिछली नस्ल को पता भी नहीं था वो ट्रेडिशन आजकल, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशन क्या है कि एक चीज आपकी जो चली आ रही है, अब घर में हर किसी के पास फोन होता है, हर अडल्ट के पास फोन मौजूद है, इवन बच्चों के पास भी फोन मौजूद है। तो क्या अब से 25 साल 30 साल पहले ये ट्रेडिशन एग्जिस्ट करती थी कि घर के अंदर सारे लोग जो है ना उनके पास फोन होगा? बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसा है कि ये वक्त के साथ आपको चेंज होना पड़ता है, लेकिन जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम ट्रेडिशन का नाम नहीं दे सकते, और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को कोई जरूरी नहीं है कि कि उनको लॉ के अंदर जो है वो शामिल किया जाए और लॉ को उसके हमआहंग बनाया जाए, बल्कि ऐसे लॉ की जरूरत होती है जहां पे वो हार्मफुल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। तो जो आखिरी बात है कि ये क्या सारा आपस में ये हार्मफुल प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल लॉ और हमारा डोमेस्टिक लॉ, क्या इसके अंदर सिनर्जी मौजूद है? यकीनन इसके अंदर बहुत सारी लेवल के ऊपर आप कह लें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स लॉ, बहुत सारी लेजिस्लेशन हो चुकी है इनके दरमियान में सिनर्जी क्रिएट करने में। जो हमारा असल इशू है वो ये है कि जो इसकी पूरे तौर पे इन्फोर्समेंट है, क्योंकि उस इन्फोर्समेंट के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन कैपेसिटी चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए। वहां पे हम लोग लैक करते हैं कि जहां हम उस पूरी, और इवन इंसान को जो है हमारे मुआशरे के अंदर लोगों को लॉ अबाइडिंग होना, लॉ को रिस्पेक्ट करना, लॉ की इज्जत करना कोई काबिल फख्र बात है,
ये इसके बारे में आगाही होना जो है ना कि ये वो वाली चीजें हैं जहाँ हमें आप कह लें कि काम करने की जरूरत है। हमारे लोग सिग्नल तोड़ के खुश होते हैं, मतलब कानून तोड़ा है तो वो खुश है। भाई ये खुशी की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि आपने कानून तोड़ा है। तो इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत सर जज़ाकिल्लाह सर, इफ़ यू अलाउ मी एक लास्ट क्वेश्चन अगर हम ऐड है। कर जी जी, सकें। आपकी आपके ऊपर है। Okay, sir. So Miss Fatma Mazhar asked, Sir, as we know, the discrimination is inherent and the attitudes will take time to change. Is there a change you have noticed in attitude of legal community in recent years? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लीगल कम्युनिटी की। मैं आपको अगर चेंज की बात आपको करूं, पहली बात यह कि जो लीगल कम्युनिटी है वो भी मुआशरे का हिस्सा है, वो भी उसी मुआशरे से आते हैं, वहीं पे वापस जाते हैं, वहीं रहते हैं ना, तो वो भी उसी का हिस्सा है। अगर मुआशरे में चेंज आएगी तो लीगल कम्युनिटी के अंदर भी चेंज आएगी। जो आपको एक विजिबल चेंज नजर आती है वो है कि आमतौर पे इसको मेल डोमिनेंट जो है वो प्रोफेशन कहा जाता है। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है या अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि दिस इज अ प्रोफेशन दैट्स वेरी रिसेप्टेबल टुवर्ड जो है वो विमेन। इस प्रोफेशन के अंदर अगर आप आए, आपको अगरचे ओवरऑल मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर अगर आप देखें तो पिछले कोई एक दहाई के अंदर इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी खवातीन जो है वो एंटर हुई हैं। इवन जो है वो आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट तक जजेस तक भी जो है ना कि वो पहुंचे हैं। और आपको अगर आप जो प्रपोर्शन ऑफ विमेन है, अगर 10-15 साल पहले का देखें और अब का देखें तो वो आपको बार मेंबरशिप में बहुत ज्यादा नजर आता है, फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वहां नुमाइंदगी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये भी है कि फीमेल आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल कंपैरेटिव टू इन पास्ट के, जब इस एक टाइम के ऊपर इसको सिर्फ मर्दों का प्रोफेशन समझा जाता था, आज उसमें आपको बहुत विजिबल तौर पे खवातीन नजर आती हैं। तो ये एक, मेरे ख्याल में ये एक तब्दीली की अलामत है। Sir, Jazakallah for sharing your expertise and valuable time. Sir, before we finally conclude, is there any message you would like to share with our participants? बस मेरा ख्याल है हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। जिन जिन्होंने सुनी है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन बातों को आपस में भी करें और बाकी लोगों के साथ भी करें, और एटलीस्ट अपनी हद तक जो है ना कि वो अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी को समझें। Jazakillah, sir. Your comprehensive responses have been enlightening, and we sincerely appreciate your time and dedication. Ladies and gentlemen, we have now come to the conclusion of our webinar. And on behalf of Law Students Council, I would like to thank all of you for joining us today. Indeed, your active participation has been instrumental in making this webinar a success. Inshallah, we'll be back with another topic and distinguished guest. Till then, stay connected with our social media platforms and do visit our website for further updates. Thank you, have a great day, and Allah Hafiz.